So in the last lecture, I was talking about the various messages and advices given by Max Ehrmann. Max Ehrmann says that learn from experience, learn from your experiences, nurture the strength of spirit to shield you in sudden misfortune, but do not distress yourself with dark imaginings. But do not distress मतलब किसी चीज से भाग जाना, किसी चीज को अवॉइड करना. But do not distress yourself with dark imaginings. Dark imaginings means here unhappy visions. Don't have unhappy visions in your life. आपका जो दृष्टिकोण है वो निगेटिव नहीं रहना चाहिए. यू शुड बी ऑलवेज पॉजिटिव. सो बी विथ पॉजिटिव थॉट्स, positive thinking. Some people they have the negative thinking, dark imaginings. So dark imaginings means unhappy visions, bad visions. So the poet says that we should develop good imaginings, bright imaginings, opposite of dark imagining. डार्क मतलब काले, जिसमें अंधेरा भरा हुआ आहे, काळोख आहे. तर काळोख नाही, आपल्याला उजेड पाहिजे. हमको अंधेरा नहीं, हमको उजाला चाहिए. सो डार्कनेस इज द सिंबल ऑफ डेथ एंड लाइट इज द सिंबल ऑफ लाइफ. डे इज द सिंबल ऑफ लाइफ, नाइट इज द सिंबल ऑफ डेथ. So the poet says that we should not distress ourselves with dark imaginings. Many fears are born of fatigue. और हमारे अंदर जो एक डर होता है, many times we are afraid of something. We have fears. F-E-A-R-S, fears. Fears means डर. आपण घाबरतो. There are certain things which afraid us, which fear us, but these fears are born of fatigue. लेकिन ये जो फियर है, हमारे अंदर जो फियर आती है, हमारे अंदर जो डर आता है, वो उसका जन्म कहाँ से होता है? तो उसका जन्म होता है फैटिज में से. FATIGUE, फैटिज. फैटिज मीन्स टायर्डनेस, TIREDNESS, टायर्डनेस, थकावट, आपण थकून जातो. अँड लोनलीनेस, LONELINESS, लोनलीनेस, अकेलापन, एकटेपना. कभी कभी हमको लगता है कि हम अकेले हैं दुनिया में, लोनलीनेस. तो कभी कभी घर में हम अकेले होते हैं या किसी जगह पे हम अकेले होते हैं तो डर लगता है, डर महसूस होता है. और कभी कभी हम थक जाते हैं. बियॉन्ड होलसम डिसिप्लिन बी जेंटल विथ यूर सेल्फ. सो द पोएट सेज दैट फियर्स one should actually protect the inner force one has and allow it to grow. Inner force जो है वो बहुत important है. तो in the last lecture I was talking about the inner force of Mahatma Gandhi, which is described in the story written by Patrick Quinn, I was Gandhi's jailer. तो महात्मा गांधी ने किया था, महात्मा गांधी ने अपने अंदर एक इनर फोर्स पैदा किया था.
अंदर की जो ताकत होती है, अंदर की ताकत वो कहाँ से आती है? हमारे रूहानी में से आती है, हमारे आत्मा में से आती है, हमारे सोल में से आती है, हमारे पर्सनैलिटी में से आती है, हमारे कैरेक्टर में से आती है, हमारे अच्छे विचारों में से आती है। अगर आपके विचार बुरे हैं, इफ यू हैव बैड थॉट्स, you can't grow the inner force. If you have negative thinking, you can't grow inner force. So inner force comes from your positive attitudes, your good manners, your good behavior, your good personality, your good character. As Mahatma Gandhi's character is timeless, Mahatma Gandhi's character is unparalleled, which cannot be compared with any character. So Mahatma Gandhi's personality, Mahatma Gandhi as a man was a great man. Though Mahatma Gandhi died, but his thoughts never die. Mahatma Gandhi's thoughts are permanent in our life. So the poet says that we should try to protect our inner force and allow it to grow. This will come to one's aid in times of unforeseen disastrous situations. जब बुरा वक्त आएगा, मुसीबत आएगी, कुछ दुर्दैव आएगा, कुछ गलत घटेगा, at that time that inner force can help us. वो जो अंदरूनी ताकत है, वो जो आत्मा की, वो रूहानी की जो शक्ति है, the power of the inner soul, our inner force can help us to face any disasters. As the whole world is now facing, है ना, this कोरोना वायरस आज हमारा दुश्मन बना हुआ है और हम लड़ रहे हैं। तो हमारी जो अंदर की ताकत है, वो अंदर की ताकत ही हमको वो लड़ने के लिए, कोरोना के खिलाफ जो युद्ध हम लड़ रहे हैं, जंग, वार, we are facing the war with coronavirus, and we are able to fight this coronavirus with the help of the power of our spirit, with the help of the inner force in us. Fears, a result of unhappy and depressing creations of the mind. अब फियर जो है ना, मैं बता रहा था, जो डर है, कभी कभी हम डरपोक बन जाते हैं, अब अपन भितरे बनतो, तो दैट इज अ रिजल्ट ऑफ अनहैप्पी एंड डिप्रेसिंग क्रिएशंस ऑफ द माइंड कैन प्लेज वन. कुछ लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, निराशा में चले जाते हैं, डिप्रेशन होता है, डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, नींद नहीं आती, गोली खाना पड़ता है, रात में नींद नहीं आती, बुरे बुरे सपने आते हैं, है ना, तो सपने में भूत आता है ना, नाग आता है, सांप आता है, आपको डराता है, चिड़ौनी आती है, भूतनी आती है, आपको डराती है। तो ये क्या है, ये डार्क इमेजिनिंग से होता है। तो इसलिए मैंने बताया कि वी शुड हैव द ब्राइट इमेजिनिंग्स, वी शुड हैव द पॉजिटिव एटीट्यूड्स, पॉजिटिव विजन, नॉट नेगेटिव. इफ योर माइंड इज नेगेटिव देन राम राम सत्य है. सो योर माइंड शुड बी ऑलवेज पॉजिटिव. यू शुड हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए, पॉजिटिव ख्वाब देखना चाहिए, अच्छा सोचना चाहिए खुद के बारे में, समाज के बारे में, देश के बारे में, दुनिया के बारे में. जब इंसान जब खुद के बारे में सोचना चालू करता है तो दैट इज द डार्क विजन्स, दैट इज द नेगेटिव माइंड. बट एट सच टाइम्स वन शुड नॉट गिव इन टू दीज फियर्स. लेकिन हमको उसको सरेंडर नहीं होना है. ये जो बुरे ख्वाब हैं, ये जो बैड थॉट्स हैं, या डार्क विजन है, नेगेटिव विजन, वी शुड नॉट गिव इन और सरेंडर टू दीज फियर्स एज दे अराइज ड्यू टू weariness, एग्जॉशन एंड आइसोलेशन. तो ये जो चीज़ें हैं, जो डर पैदा होता है, ये डर कहाँ से आता है? मैंने बताया कि weariness, फैटिज में से आता है.
फैटिज का मतलब मैंने बताया कि वियरीनेस, WEARINESS, वियरीनेस मतलब थकान, थक जाते हैं हम। आइसोलेशन, वो जो बताया था मैं, लोनलीनेस अकेलापन। सिंगलनेस, सिंगलनेस, आइसोलेशन, सिंगलनेस, कभी कभी हम सिंगल हो जाते हैं। सिंगल, when we are single, that is called as loneliness, that is called as isolation, ISOLATION, अकेलापन। when we are separated from others and live alone, जब हम अलोन होते हैं, अलोन, ALON, अलोन, अकेलापन। fears come, fears come when we feel weariness, fears come due to exhaustion, fears come due to isolation. So one's life should be disciplined without being harsh on the self. इसलिए हमारा जो जीवन है वो जीवन एक डिसिप्लिन में चलना चाहिए। सो बियॉन्ड अ होलसम डिसिप्लिन, बी जेंटल विथ योर सेल्फ। सो देयर शुड बी डिसिप्लिन इन आवर लाइफ। डिसिप्लिन, एक शिस्तबद्ध जिंदगी हमको जीना पड़ेगा एक डिसिप्लिन में। अब जैसा कि ये डिसिप्लिन देखो, मैं लेक्चर ले रहा हूँ 10 बजे बराबर, मैं एक डिसिप्लिन में लेक्चर लेता हूँ, और आप भी डिसिप्लिन में ये लेक्चर को ज्वाइन करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं डिसिप्लिन। जैसा हम स्कूल में डिसिप्लिन मेंटेन करते हैं, कॉलेज में डिसिप्लिन मेंटेन करते हैं, टीचर क्लास में डिसिप्लिन मेंटेन करता है। कोई बच्चे चिल्ला रहे हैं तो टीचर उनको गुस्सा करता है और एक डिसिप्लिन मेंटेन करने की कोशिश करता है। तो वैसे ही हमारी ज़िंदगी में एक डिसिप्लिन होना चाहिए। मतलब सवेरे जल्दी उठना, रात को जल्दी सोना, 3 टाइम बराबर टाइम पे खाना खाना, है ना, दांतों को ब्रश करना, टॉयलेट जाना, डेली बात करना, ये एक डिसिप्लिन होता है। जैसा दुनिया भी डिसिप्लिन में काम कर रही है ना। अर्थ बराबर मूव करती है अराउंड द सन, इसलिए पूरा ईयर चलता है, डे चलता है। घड़ी भी बराबर काम करती है 24 घंटे, टिक 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 टिक, सेकंड्स, सेकंड्स, मिनट्स, आवर्स, डे, वीक्स, मंथ एंड ईयर, 365 दिन का एक साल होता है। तो एक डिसिप्लिन में लाइफ चलती है। बारिश भी बराबर जून में बारिश होती है ना। ये मौसम भी बदलता है, नेचर बदलता है। अभी ठंडी चल रही है, बाद में समर आ जाएगा, समर समर के बाद में और रेनी सीजन आएगा, और रेनी सीजन के बाद में और विंटर सीजन आएगा। तो ये नेचर भी एक डिसिप्लिन में काम करता है। वैसे ही हमारी जिंदगी में एक डिसिप्लिन होना चाहिए, और उसके साथ बी जेंटल विथ योर सेल्फ, और खुद के लिए भी हमको जेंटल बनना पड़ेगा, जेंटल। सो डोंट बी हार्श ऑन द सेल्फ, जेंटल, जेंटलमैन की तरह हमको काम करना पड़ेगा। जेंटल वुमन, अच्छा बनना पड़ेगा। हम बोलते हैं ना जेंटलमैन है, अरे ही इज अ जेंटलमैन, मतलब बहुत अच्छा इंसान है। गुड एटीट्यूड्स, गुड लाइफ, गुड बिहेवियर। तो जेंटलमैन, कोई चोर है उसको जेंटलमैन हम बोलते हैं क्या? एटीएम मशीन फोड़ रहा है ना, किसी का खून कर रहा है, मोहल्ले में झगड़ा कर रहा है, सो दीज पीपल दे आर नॉट कॉल्ड एज अ जेंटलमैन। सो हु इज अ जेंटलमैन? अ जेंटलमैन इज अ गुड मैन, a gentleman is a good man. So be good with yourself. So when you become good with yourself, automatically you become good with others. अगर जब तक हम खुद के लिए अच्छा नहीं बनेंगे, हम दूसरों के बारे में अच्छा नहीं सोचेंगे। So be a good man. When you alone are a good man or good woman, then the whole society becomes good. So one's life should be disciplined, good. Every individual is important.
as bright and shiny as a star. Okay, so the poet says that you are a child of the universe, no less than the trees and the stars. You have a right to be here. And whether or not it is clear to you, no doubt the universe is unfolding as it should. Remember, this is the advice, message given by Max Hermann, the great poet, that he is talking to the reader. This poem, Max Ehrmann is the speaker who is speaking to us. So the poet is speaking to us. पोएट हमसे बात कर रहा है, पोएट आपको बोल रहा है, स्टूडेंट्स को, यू आर अ चाइल्ड ऑफ द यूनिवर्स. नॉट ओनली स्टूडेंट्स, दुनिया में जितने लोग हैं जो ये पोएम पढ़ रहे हैं उनको बोल रहा है. सो यू नो, पोएट्री इज रिटन फॉर कम्युनिकेशन एंड एवरी पोएट इज कम्युनिकेटर. एवरी पोएट इज अ कम्युनिकेटर. पोएट क्या करता है? हमारे से बात करता है, कम्युनिकेशन करता है. He tries to communicate with his readers. So he says, you are a child of the universe. ये दुनिया के आप बच्चे हैं. ये धरती हमारी माता है, मदर अर्थ. जैसा भारत माता, भारत माता, मदर इंडिया, वैसा दिस यूनिवर्स इज आवर मदर. The whole world is our mother, and we should love this mother. And this mother also loves us. You are a child of the universe, no less than the trees and the stars. जैसा पेड़ है यूनिवर्स में, आसमान में तारे हैं, उतना ही आपका इंपॉर्टेंस है. You are as important or significant as the trees and the stars. You have a right to be here. और आपका राइट है जिंदगी जीना. जिंदगी जीना, इस दुनिया में रहना आपका राइट है. ये राइट आपको ऊपर वाले ने दिया है, गॉड ने दिया है. ये राइट आपको इस नेचर ने दिया है, इस कायनात ने दिया है, इस कुदरत ने दिया है. ये जो निसर्ग बोलते हैं हम, इसने दिया है. ये धरती ने दिया है, ये आसमान ने दिया है. यू हैव द राइट टू बी हेयर. एंड वेदर और नॉट इट इज क्लियर टू यू, नो डाउट द यूनिवर्स इज अनफोल्डिंग एज इट शुड. सो द यूनिवर्स इज वेरी ग्रेट. One's life should be disciplined without being harsh on self. Every individual is important, as bright and shiny as a star, having equal right on earth as the plants and all of nature. This idea of having equal right as the rest of the nature makes love and care to oneself and obligation. तो जब हमको ये समझ में आता है तो हम खुद का केयर करते हैं. देखो, बहुत सारे लोग केयर नहीं करते, अपनी जिंदगी बर्बाद करते हैं, नशा करते हैं, दारू पीते हैं, है ना, सिगरेट पीते हैं, और जिंदगी का महत्व समझ नहीं पाते. कैसी भी लाइफ तो डिसिप्लिन नहीं रहती. गाड़ी भी कैसी भी चलाते हैं, सिग्नल तोड़ते हैं, एक्सीडेंट करते हैं, दूसरों को मारते हैं और खुद भी मर जाते हैं. बहुत बार हम टीवी न्यूज पे देखते हैं, पेपर में पढ़ते हैं, है ना, बायकोचा खून करून स्वतः आत्महत्या केली. देयर इज अ पर्सन हु किल्ड हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन. सबको कुएं में ढकेला और बाद में फांसी लगा के मर गया. तो यू नो, ये ऐसा नहीं है. यू हैव द राइट टू लिव. आपका अधिकार है, राइट टू लिव. आप कुछ लोग मांग रहे हैं राइट टू डाई, राइट टू डाई. There are so many cases pending in Supreme Court
of India as well as Supreme Courts in other countries right to die, but you have no right to die. Nature has given you equal right. जैसा आसमान में तारे चमकते हैं वो उनका अधिकार है, बादल गरजते हैं वो उनका अधिकार है, हिमालय पे बर्फ गिरता है वो अधिकार है, किसी जानवर को जन्म लेना वो उसका अधिकार है, किसी पौधे को जन्म लेना वो उसका अधिकार है। जैसा किसी पेड़ पे फूल लगते हैं वो फूल लगना उसका अधिकार है, तारों का चमकना उसका अधिकार है, सूरज का चमकना, चांद का चमकना वो उनका अधिकार है। नेचर ने सबको इक्वल राइट दिया है, तो वैसे ही हमको चमकना है। We should be as bright as the stars in the sky. Every person has the right to shine. चमकना, अपना टैलेंट बताना, अपना नॉलेज बताना, एग्जाम देना, मेरिट में आना, सबका अधिकार है। हर बच्चे का अधिकार है पढ़ाई करना, हर बच्चे का अधिकार है क्लास को ज्वाइन करना, लेकिन बच्चे नहीं करते। यू हैव द इक्वल राइट, हमने सबको राइट दिया है टू ज्वाइन माई क्लास, अटेंड माई लेक्चर एंड गेट नॉलेज। जब आप लेक्चर अटेंड करते हैं तो नॉलेज मिलता है आपको, बिल्कुल मिलता है। ये जो मैं बातें बता रहा हूं ये आप नोट्स गाइड पढ़ेंगे तो ये आपको नहीं मिलेगा। When the teacher is in the class, he talks many things related with the syllabus, related with the poem. There are many things which naturally come in the mind of the teacher. Natural. So my teaching is a natural teaching. Automatically thoughts come and I share with my students. So you have the right, equal right. तो जिंदगी ऐसी ही बर्बाद नहीं करना। यू हैव द इक्वल राइट टू शाइन एज द स्टार। दिस आइडिया ऑफ हैविंग इक्वल राइट एज द रेस्ट ऑफ द नेचर मेक्स लव। इससे क्या होता है, हमको खुद से प्यार होता है, हमको इस नेचर से प्यार होता है। देखो, जब तक हम खुद से प्यार नहीं करेंगे, हमारे शरीर से, हमारे मन से, हमारे आत्मा से, हमारे चेहरे से, हमारे कैरेक्टर से, हमारे पर्सनैलिटी से, जब तक हम खुद से प्यार नहीं करेंगे तो हम दूसरों से प्यार कैसे करेंगे। सो व्हाट इज द आइडिया, लर्न टू लव योर सेल्फ। बहुत अच्छा है, दिस पोएम इज वेरी नाइस, वेरी ग्रेट पोएम। लव योर सेल्फ एंड नेचुरली यू विल लव योर पेरेंट्स, योर ब्रदर्स, योर सिस्टर्स, your society, your country, this world। जब आप खुद से प्यार करेंगे तो प्यार की कीमत आपको मालूम होगी। फिर आप अपने माँ बाप से, भाई बहन से, समाज से, देश से, अपने लोगों से, फ्रेंड से, अपने टीचर से, अपने दादा दादी, आप प्यार करेंगे। फर्स्ट लर्न टू लव योर सेल्फ, दिस इज द मैसेज, दिस इज द, इतने एडवाइस हैं इसमें। So this poem is full of advices, full of messages। एक बहुत अच्छे संदेश हमको मिलते हैं, बहुत मतलब सीखने की बात होती है। लिटरेचर क्या है, लिटरेचर टीचर्स अस, पोएट्री टीचर्स अस, पोएट्री इज फुल ऑफ फिलॉसफी। पोएट्री में पूरा फिलॉसफी है। फिलॉसफी क्या है, फिलॉसफी तत्व ज्ञान, मतलब जिंदगी जीने का तरीका है। फिलॉसफी इज अ सब्जेक्ट विच डील्स विद द वेज ऑफ लाइफ, हाउ टू लिव लाइफ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइफ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेथ। ये जिंदगी क्या है, ये मौत क्या है, ये धर्म क्या है, ये समाज क्या है, देश क्या होता है, कैरेक्टर क्या होता है, पर्सनैलिटी क्या होती है, मन क्या होता है, सोल क्या होता है, आत्मा क्या होती है, दिल क्या होता है, इमोशंस क्या है, फीलिंग्स क्या है, जज्बात क्या होते हैं। पोएट्री टीचेस अस मेनी थिंग्स। सो मैथ्यू आर्नोल्ड
The great poet, Victorian poet Matthew Arnold, in his essay, critical essay, The Study of Poetry, says that poetry is the new or modern religion. जैसा धर्मों को हमने बहुत देखा है, there are so many religions in this world. बहुत सारे religions हैं. Christianity is there, Islam is there. There are so many religions in this world. Hinduism is there, Sikhism is there, Jainism is there. There are so many religions. But poetry is the modern religion. पोइट्री एक मॉडर्न रिलीजन है. अब धर्म क्या है, मजहब क्या है, इस्लाम क्या है, क्रिश्चियनिटी क्या है, हिंदुइज्म क्या है, हमको जिंदगी जीने का तरीका बताते हैं. When we read Bible, Quran, Gita, Upanishad, we learn many things about life, because these books are full of philosophy, divine philosophy. इसमें तो एक दैवी तत्वज्ञान है. There is a divine philosophy in these religions, in the holy books, in the holy scriptures. इसको होली स्क्रिप्चर्स बोलते हैं. धर्म ग्रंथ कैसे होते हैं? पवित्र होते हैं. पवित्र ग्रंथ बोलते हैं हम, होली, सैक्रेड, sacred scriptures, sacred books. So we learn many things from these sacred books. So the poet says that we should try to love ourselves. That is very important. Therefore, be at peace with God, whatever you conceive him to be, and whatever your labors and aspirations. In the noisy confusion of life, keep peace with your soul, with all its sham, drudgery, and broken dreams. It is still a beautiful world. Be cheerful, strive to be happy. And in this way, the poem ends. So I will discuss, then I will stop. We have some 10 minutes remaining. And in the coming lecture, I am going to teach you the Flying Sikh, written by Milkha Singh, the great runner in the world. Milkha Singh. I was talking about Bhag Milkha Bhag, a film of Farhan Akhtar. So in the coming lecture, next Monday, I will continue with Milkha Singh. Therefore, be at peace with God. So try to believe in God. Whatever you conceive him to be. गॉड कैसा है, गॉड के बारे में आपके विचार क्या है, आप गॉड के बारे में क्या इमेजिन करते हैं, उसको कैसा कंसीव करते हैं. CONCEIV, CONCEIV. कंसीव मतलब थिंक, सोचना, इमेजिन करना गॉड के बारे में. वो कुछ भी हो, बी एट पीस विद गॉड. गॉड के साथ आपको पीस रखना है. यू ट्रस्ट गॉड एंड वॉट एवर यूर लेबर्स एंड एस्पिरेशन. आपके कोई भी लेबर्स रहने दो. लेबर्स मतलब वर्क्स, आपका काम. वॉट एवर वर्क डू यू, है ना, आप कुछ भी काम करते हैं. यू मे बी डॉक्टर, यू मे बी इंजीनियर, प्रोफेसर, स्टूडेंट और फार्मर, शेतकरी, है ना, मजदूर. वॉट एवर मे बी यूर वर्क, वॉट एवर मे बी यूर एस्पिरेशंस. एस्पिरेशंस, डिजायर्स, महत्वाकांक्षा, इच्छा, है ना, एम्बिशंस, एस्पिरेशंस, ASPIRATIONS, एस्पिरेशंस, एम्बिशंस, महत्वाकांक्षा, एम्बिशंस, AMBITIONS, एम्बिशंस, डिजायर्स. इन द नॉइजी कंफ्यूजन ऑफ लाइफ. हमारी जिंदगी में कंफ्यूजन है, जिंदगी कंफ्यूजन से भरी हुई है. कीप पीस विथ योर सोल. लेकिन हमारे आत्मा को हमको पीसफुल रखना है, मन को शांत रखना है, रूहानी को सुकून देना है, शांती देना है. मनाला शांत ठेवायचं आहे आपल्याला. वी हॅव टू कीप आवर सोल पीसफुल, आवर माइंड पीसफुल.
हमारे रूहानी को सुकून देना है, हमारे आत्मा को हमको शांत रखना है, पीस रखना है। पीस इज वेरी इंपॉर्टेंट, रेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, आप कितना भी पैसा कमाएंगे, करोड़ों रुपए, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, द प्रॉपर्टी इज नॉट इंपॉर्टेंट। ऐसे लोग हैं जो इतना पैसा कमाते हैं, देखो हिटलर, लास्ट में क्या होगा, हिटलर है ना, जर्मनी का हिटलर, द किंग ऑफ जर्मनी, सुसाइड किया, आत्महत्या किया, खुदकुशी किया, ही कमिटेड सुसाइड। बहुत सारे लोग रहते हैं, करोड़ों रुपए कमाते हैं और आत्महत्या करते हैं। और सुशांत सिंह राजपूत, सुशांत सिंह राजपूत, देखो पैसा कमाया, सुपरस्टार बना, है ना। मैं आई यूज टू वॉच पवित्र रिश्ता, द सीरियल, और बहुत अच्छा था, वेरी हैंडसम, एक्टिंग बहुत अच्छी थी, फिल्मों में आ गया, करोड़ों रुपए कमाए, लेकिन ड्रग पीने लगा, गांजा, चरस, हीरोइन, ड्रग, दारू, सिगरेट, मन की शांति चली गई। एंड इन द लॉकडाउन पीरियड फांसी लगा दिया, कमिटेड सुसाइड। So it is the advice to all students from the poet as well as me, your teacher, be happy, be peaceful. With all its charm, pretense, pretense, all its charm, S-H-A-M, sham, S-H-A-M, sham, sham means pretense, ढोंग, drudgery, D-R-U-D-G-E-R-Y, drudgery means toil, work hard, है ना। प्रिटेंस है, काम है, बहुत काम है, ब्रोकन ड्रीम्स हैं, कभी कभी हमारे जो ड्रीम्स हैं वो ब्रेक होते हैं, टूट जाते हैं, है ना। ब्रोकन ब्रोकन ड्रीम्स इन आवर लाइफ। इट इज स्टिल अ ब्यूटीफुल वर्ल्ड, लेकिन दुनिया ब्यूटीफुल है। सो बी चीयरफुल, इसलिए चीयरफुल रहना। चीयरफुल मीन्स हैप्पी। व्हाट इज द मैसेज गिवन बाय द पोएट? Be cheerful, be cheerful always, and strive to be happy. मतलब try to be happy, try to be cheerful. So one's life should be disciplined without being harsh on the self. In the concluding part of the poem, the poet unites the individual soul with the universe. जैसा आत्मा परमात्मा से मिलती है, आत्मा परमात्मा से मिलती है, वैसा हमारा आत्मा और ये जो यूनिवर्स है, ये जो दुनिया है, ये जो नेचर है, उसकी आत्मा से हमारे आत्मा को जोड़ने की वो कोशिश कर रहा है। ह्यूमन बींग्स आर अ पार्ट ऑफ लार्जर यूनिवर्स and plan that continues relentlessly. Everyone must be aware and respect this fact. One must treat oneself lovingly and respectfully and be at peace with God. Whatever idea one has of God, because of the chaos of the materialistic world and the attention to be paid to the work, desires, aims, and hopes, one's mind often becomes confused. But even in the world of such distractions, one should learn to listen to one's soul, keep peace within oneself, and live out one's dreams. The world is a precious place. In spite of pretense, falsehood, unfulfilled goals, and so one should celebrate life and live with joy of belonging to the universe, happy that one is a part of a bigger journey. So ये जो दुनिया है, ये मटेरियल वर्ल्ड है, ये छोड़ना है हमको। One day we have to leave this world. Life is a journey. अब जर्नी कैसा रहता है? यहाँ से हम औसा से बम्बई जाते हैं, it takes 10 hours. So the starting point is Ausa, the ending point is Juhu Chowpatty, Mumbai. That is journey, finished, finished. So life is a journey. We are born in this world to die. So there is one poem, Essay on Man, written by Alexander Pope. Alexander Pope, the first line of the poem, Essay on Man, says that born to die. Born to die मतलब इंसान के बारे में बताया, इंसान मरने के लिए पैदा होता है। एक दिन हमको ये मटेरियल वर्ल्ड हमको छोड़ के जाना है। कहाँ जाना है? इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। वी हैव टू लीव दिस वर्ल्ड बिकॉज दिस वर्ल्ड इज द वर्ल्ड ऑफ मटेरियल थिंग्स, भौतिक भौतिक सुख सुविधा, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड।
छोड़ के हमको स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जाना है, वो आसमान में भगवान के पास जाना है, उस जन्नत में हमको जाना है, उस स्वर्ग में हमको जाना है। So this world is, this world is chiller. This is meaningless world. मीनिंगलेस वर्ल्ड, कंफ्यूजन, पैसा 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 करते हैं, अपना सपना मनी मनी, सब लोग पैसे के पीछे पड़े हैं, लेकिन ये पैसा, ये धन दौलत, ये सब हमको छोड़ के जाना है। इसलिए हमेशा बिलीव इन गॉड, वॉट एवर मे बी योर रिलीजन। इफ यू आर मुस्लिम, प्रे अल्लाह, रीड कुरान, go to masjid, 5 times namaz. If you are Hindu, okay, go to your temple, believe in God. If you are Christian, go to churches and pray your God, whatever God may be of yours, whatever religion may be of yours. Be with peace with God and try to keep your soul peaceful. Try to believe in yourself, have good ideas, be gentle, have good manners, good behavior. That is very important. So in this way, the poem ends here, and we have a little bit time also. I will stop. I think the time is over. I will stop. We will meet on coming Monday with Milka Singh. The flying Sikh. The flying Sikh will be the next topic.